After studying the chapter, the learner साइलेंस मेंटेन करना सब लोग. applicates the contribution of the business activity in the growth and development of the economy. This is and the concept of the object of business categories business activity into classifications for professions and the employment. Classifies industry in the different type. Explain risks and profit it as a reward of risks and enumerates factors and the startings of a business. Imran, Maniprit, Joseph, and Priyanka have been classmates in class 10. After their exams are over, they happen to meet it at a common friend. Ruchita hosts just when they were sharing their experience of examinations. Ruchika's father, Raghuraj Chaudhary, intervenes and ask about their well-being. He also inquiries about their career plans, but none of them had a definite reply. Raghuraj, who himself is a successful businessman, tells him that about business as a career opportunity. Joseph gets excited by the idea and says, "Yes, business is really good for making lots of money." Raghuraj tells them that there is a lot more to business than merely money. Business activities lead to growth, the development of any country. He pursued डिस्कशन नहीं करना as tells them है that तो आपका बारी the सेकंड में आ roads जाएगा. of business activities can be tracked back and accident and then time and how trading helps in the profits of the and India subcontinent. Priyanka said that they have read about the skills wrought in their history textbook books. Raghuraj then gets busy with day to day takes. However, the four classmates being raising questions. The conversations of the four classmates proceed on how trading activities were conducted during ancient time, how far and the routes of trading activities be tracked bypass the Indian subcontinent and then refers it to routes of trading activities be tracked bypass Indian subcontinent as Savannah Bharat and Savannah Deeps by the then travels to India. Bhatt made their Columbus and Vasco da Gama undertaken journey to locate India. They dedicated it to meet the commerce teachers to their schools to find out answer to many such as questions about the development nature and purpose of business. Sit down. देखिए रीडिंग सेक्शन आपको घर पे भी करना होगा, अदरवाइज इंप्रूव नहीं होगा. नहीं, यहाँ तो करना ही है, यहाँ तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन होना ही है, ठीक है, बट घर पे भी करना होगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट इन एवरी सेक्टर इज इम्पोर्टेंट. आपके जिस सेक्शन में कमी है उसको इम्प्रूव करना जरूरी है. चैप्टर नाम क्या है आज का? यानी बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में आप जानोगे. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको इन 6 पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन मिलना है. पहला क्या है? सबसे पहला तो ये है कि आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस एक्टिविटीज का इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन. दूसरा, बिजनेस के कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको पता चलेगा. बिजनेस कहते किसको है, बिजनेस करते क्यों हैं. तीसरा, बिजनेस एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज करना जानोगे, यानी कब किसे हम बिजनेस कहेंगे, कब किस चीज को प्रोफेशन या किसी चीज को एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, इन तीनों में डिफरेंस क्या है. चौथा, आप इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर पाओगे डिफरेंट टाइप्स में. पांचवा, रिस्क प्रॉफिट को का मीनिंग आप डिफाइन कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे.
और ये भी आपको पता चलेगा कि रिस्क का रिवॉर्ड क्या कहलाता है। साथ ही साथ एक बिजनेस अगर शुरू करना है तो शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ये तरीका होता है कि किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको या तो एक केस स्टडीज दे देगा, या कोई हिपोथेटिकल एग्जाम्पल दे देगा, या फिर कोई रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल उठा के दे देगा। इसलिए ताकि क्यूरियोसिटी डेवलप हो उस टॉपिक के प्रति जो सीखने वाले। जैसे इस पैराग्राफ में आप देखेंगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इमरान, मनप्रीत, जोसेफ और प्रियंका ये सब क्लासमेट है, क्लास 10th में एक साथ पढ़े, एग्जाम खत्म हो चुका है, तो इन सब की मीटिंग चल रही है किसके घर पे, रुचिता के घर पे। अब ये सब अपने एग्जामिनेशन के दौर का जो है, एग्जामिनेशन कैसा गया, अच्छा था, खराब था, यही सब डिस्कशन चल रहा है। मेरा तो बहुत टफ गया, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा गया, किसी ने कहा बहुत टफ पेपर था, वो सब्जेक्ट खराब, ये सारा डिस्कशन जैसे एग्जाम का चलता है वही चल रहा है। अचानक से रुचिका के फादर रघुराज चौधरी इंटरवीन करते हैं और कुछ उनके बारे में उनका हालचाल पूछते हैं, साथ ही साथ उनके करियर प्लान के बारे में उनसे सवाल किया जाता है। लेकिन जैसे ही करियर के बारे में सवाल पूछा गया ना, किसी के पास कोई डेफिनिट रिप्लाई नहीं है, यानी ऐसा रिप्लाई नहीं है कि उसको एग्जैक्टली पता हो कि वो क्या करने जा। वहीं रघुराज जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसने अपने अपने बिजनेस को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे कैसे चूज किया इसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर। होता है कोई सीनियर आते हैं तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं, तो रुचिका के फादर रघुराज वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कैसे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, कैसे उन्होंने बिजनेस को ही अपना करियर चूज किया, क्या रीजन रहा उसके पीछे। जोसेफ जो है वो एक्साइटेड हो गए ये आइडिया सुन के और कहा यस बिजनेस बहुत बढ़िया है। होता है ना, कोई अगर किसी चीज के बारे में बता रहा है, किसी ने बिजनेस के बारे में डिस्कस करा तो आप बहुत यही करेंगे। दूसरा आकर के बोल रहा है यूपीएससी करना है, तो अब उसको लग रहा है कि अभी हम यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करेंगे। फिर कोई और आया बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लो, इसमें खूब स्कोप है, तो अब कह रहा है अब ये करेंगे। ऐसे लोग होते हैं। एक्साइटमेंट ये बता रहा है कि इनको ये इंस्पायर्ड हो गए रघुराज की स्टोरी जान के, और इनको भी लगने लगा कि हम भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। रघुराज टेल्स देम दैट देयर इज अ लॉट मोर टू बिजनेस देन मेयरली मनी। सिर्फ पैसा कमाना ही बिजनेस में नहीं है, पैसे से ज्यादा कुछ भी है। बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में ये कह रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ये जरूरी है। कोई भी कंट्री ना प्रोग्रेस कब करता है, जब वहां एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, नए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, तभी वो देश तरक्की करता है। रघुराज ने फर्दर ये बताया दैट रूट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट टाइम्स एंड हाउ ट्रेडिंग हेल्प्ड इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अक्सर लोगों का, पुराने जो लोग होते हैं वो ये भी अपनी स्टोरी बताने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि पहले ये बिजनेस शुरू कब से हुआ है, क्या इतिहास रहा है, इस कॉन्टिनेंट में, जिस सब कॉन्टिनेंट में हम लोग रह रहे हैं उस सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से लोग बिजनेस करते हैं, इस बारे में भी वो बात करने लग गए। प्रियंका ने क्या कहा, दैट दे हैव रेड अबाउट दिस सिल्क रूट। अब हिस्ट्री में बात हो रही है तो सिल्क रूट का डिस्कशन स्टार्ट हो गया। सिल्क रूट के बारे में मालूम है। रघुराज ने फिर बताया कि उनका डे टू डे टास्क क्या है। वो अपने डे टू डे टास्क में रघुराज अब बिजी हो गए, यानी अपनी स्टोरी बता के उनके बीच एक डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। अननेसेसरी डिस्कशन चल रहा था, अब करियर ओरिएंटेड डिस्कशन स्टार्ट हो गया। क्या डिस्कशन है, जो 4 क्लासमेट थे वो क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया उन्होंने। द कन्वर्सेशन ऑफ द 4 क्लासमेट, इनका फोकस क्या था, ट्रेडिंग एक्टिविटीज कैसे कंडक्ट होते थे, यानी पहले जब पैसा नहीं था, सोसाइटी ने मनी नहीं डेवलप करा था, तो कैसे व्यापार होते होंगे। इस तरह का डिस्कशन एंशिएंट टाइम्स का सारा डिस्कशन स्टार्ट हो गया। सो हाउ फार कैन द रूट्स ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज बी ट्रेस्ड, व्हाई वाज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट रेफर्ड टू स्वर्ण भारत एंड स्वर्ण द्वीप बाय द देन ट्रैवलर टू इंडिया। यानी एक टाइम पे इंडिया को व्यापार के सेगमेंट में ये टाइटल मिला हुआ था। यानी आज के डेट में हमारी स्थिति ना वर्ल्ड लेवल पे उस लेवल की नहीं है, लेकिन एक दौर था जब सुनहरा दौर था इस देश का व्यापार बिजनेस के मामले में। ठीक है, अच्छा उसके पीछे रीजन भी रहा है। रीजन ये रहा है ना कि एंशिएंट टाइम में जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें पता ये लगेगा कि एग्रीकल्चर वाज द की इकोनॉमिक एक्टिविटी।
मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का दौर जहां पे लोग सब हाथ से काम कर रहे हैं, मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। की एक्टिविटी क्या है वहां पे? एग्रीकल्चर। क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज डिपेंडेंट किस पे है? एग्रीकल्चर। और इंडिया क्या है? एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है, ज्यादातर यहाँ पे तो खेती ही होता है। तो वो सुनहरा दौर इसलिए भी था क्योंकि वो एग्रीकल्चर बेस्ड दौर रहा, वो सेंचुरी रहा है एग्रीकल्चर का। कई 100 साल तक लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के दौर में एग्रीकल्चर ही मेन फोकस हुआ करता था। तो जिस एरिया में ज्यादा खेती है वो एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप करना था, और खेती जहां अच्छी है तो जाहिर सी बात है वहां पे कैटल फार्मिंग ये सब चीजें भी बेटर होनी थी। और यही मेन था उस दौर का, यही मेन इनकम माना जाता था। आगे चलिए। व्हाट मेड कोलंबस वास्को डिगामा अंडरटेक जर्नी टू लोकेट इंडिया? क्यों वो इंडिया की खोज में निकले? सुना होगा ना। अभी आज हम और आप विदेश जाने का क्यों सोचते हैं? कनाडा, कनाडा के बारे में लोग बात कर रहे हैं, या यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं लोग, तो क्यों जाना चाहते हैं विदेश? क्योंकि वहां का कुछ ना कुछ सुनहरा लोग डिस्कशन करते हैं कि वहां ये है, वहां का रोड्स ऐसा है, बिल्डिंगें ऐसी बनी हुई है, एरिया किस तरीके का, ये सारा डिस्कशन होता है। तो उस टाइम पे विदेश में ये डिस्कशन होता था कि इंडिया में तो क्या है, क्या प्रोडक्शन किस लेवल का होता है, खाने पीने की क्या क्या चीजें अवेलेबल है, यहाँ तो उतना है भी नहीं। ठीक है। They decided to meet the commerce teacher of their school to find out the answer to many such questions about the development, nature and purpose of business. तो इतने सारे सवाल जो उनके बीच उस डिस्कशन में स्टार्ट हुआ है, यही सवाल लेके वो अपने कॉमर्स टीचर्स के पास पहुंचे और फिर वहां से डिस्कशन इनिशिएट हुआ। ठीक है। तो ये था अब जो फर्स्ट आपका सेक्शन का रीडिंग हुआ ना, उसका एक्सप्लेनेशन। रीडिंग करना है आज, एक पैराग्राफ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जहां पे हमने टिक लगाया इंट्रोडक्शन, यहाँ से यहाँ तक। All human beings, wherever they may be, require different types of goods and service to satisfy their needs. If we look around, we observe people require different types of products and services to satisfy their needs. How do they buy them? They go to the market, either physical or electronic, or over internet, where they find variety of shops and sellers offering the required commodities and choose the best which they require. Have you ever wondered how do these products and services are made available in the market? The necessity नहीं यही तक, यही तक। नेक्स्ट आ जाओ। और घर पे भी रीड करना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हाँ, एक पैराग्राफ, पहले बॉयज फिर गर्ल्स। हाँ, यहाँ से हैव यू एवर वंडर्ड। Have you ever wondered how to do these products and services are made available in the market? The necessity of supply goods and services is done by different set of people engaged in various economic activities such as production, manufacturing and distribution and exchange so that the needs and wants of customers are satisfied. Business is a major economic activity which is concerned with production and sales of goods and services required by the people. Business is central to our life. All through our life are also influenced by many other institutions in modern society, such as a school, college, hospital, political parties, and religious bodies. Business has a major influence on our daily life. It therefore becomes important that we understand the concept, nature, and purpose of the business. चलो। यहाँ से Business start and production and end composition, making the finished product which consider involves several steps. The birth of production, goods covered under industry and the remaining activities
belong to commerce in the nutshell be called the business, which is branded terms and includes industry, trade and commerce. देखो अभी बहुत सारे लोगों का आवाज यहीं पे रह जा रहा है, ठीक है, बट हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इम्प्रूव होगा, कि एंड तक वॉइस पहुंचे और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। अभी तो पहला दिन है, ठीक है, ये जो हार्ट बीट अभी फास्ट है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में ये चीजें ठीक हो जाती। चले इंट्रोडक्शन पॉइंट है, जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सबको क्या चाहिए, अलग अलग तरह का गुड्स और सर्विस चाहिए होता है। लोगों की जरूरतें है ना, और उन जरूरत को पूरा करने के लिए यू विल नीड गुड्स और सर्विस। अगर आप अपने तरफ देखोगे, इधर उधर नजर डालोगे तो क्या देखने को मिलता है, यू सी दैट पीपल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। बात सही है ना सर? हर इंडिविजुअल को सब चीजों का जरूरत है क्या? जैसे अगर मान लो अभी बात करें, आप में से कुछ लोगों को जो है कि वो ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है तो नाश्ता करने का मन कर रहा होगा, ठीक है, आप रोड साइड चले जाओ, कुछ लोग नाश्ता बना के बेच रहे हैं, है ना, ब्रेकफास्ट सेल कर रहे हैं, राइट। तो हर इंडिविजुअल का अपना जरूरत है। अब ये जरूरत को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, हाउ डू दे बाई देम, कैसे वो इन चीजों को खरीदते हैं? क्या वो मार्केट जाते हैं फिजिकली, या फिर इंटरनेट पे बैठ करके जोमेटो से या फिर स्विगी से चीजें मंगाते हैं? Whether they find variety of shop sellers offering the required commodities and choose the best which they require, क्या उनके पास जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बेस्ट को चूज करके ला रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ऐसे लोकेशन में रह रहे हैं जहाँ पे लिमिटेड गुड्स है और तहीं में चूज करना है? कभी गांव चले जाओ तो पता चलेगा कि अगर बिस्किट खरीदने गए तो 3-4 तरह का ही ऑप्शन, और वहीं शहरों में तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा, ठीक है। So how have you ever wondered how do these products and services are made available in the market? सोचने वाला बात है ना कि मार्केट में ये आया कहाँ से? कभी सोचे हो इस बारे में कि ये जो गुड्स और सर्विस हम खरीद रहे हैं, ये जो एप्पल आपने मार्केट से खरीदा, ये यहाँ कहाँ से आ गया? प्रोड्यूस तो यहाँ नहीं हो रहा, प्रोडक्शन तो कहीं और हो रहा है। इस तरह के सवाल मन में आते होंगे। द नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज डन बाय डिफरेंट सेट ऑफ पीपल एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग and distribution and exchange so that the needs and wants of customers are satisfied। इस पैराग्राफ में ये बात बता दिया गया कि ये जो गुड्स और सर्विस को सप्लाई करने का जो जरूरत है, ये अलग अलग लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी सारा काम कर रहा है। क्या लगता है आपको कि सब लोग, एक अगर फ्रूट सेलर का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कश्मीर में बैठा हुआ है, क्या वो खुद से फ्रूट का फार्मिंग कर रहा है और उसके बाद उसको तोड़ रहा है और ट्रांसपोर्ट करके खुद जाके पहुंचा रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? हर काम के लिए डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं, है ना, और सब अपना अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं। सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है, तब उस फंक्शंस को परफॉर्म करके उन चीजों को मार्केट तक ले जाया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, साथ ही साथ उन गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज हो रहा है। क्यों? ताकि जरूरतों को पूरा किया जा सके, कस्टमर्स की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी की जा सके। अब यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन पॉइंट आया। बिजनेस क्या है? एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बेसिकली कंसर्न्ड है विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय द पीपल। जो किससे रिलेटेड है? बिजनेस क्या है? पहला पॉइंट क्या रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपके माइंड में सबसे पहला सवाल आएगा ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? क्वेश्चन है ना, लिखो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्वेश्चन भी लिखते चलो। What do you mean by economic activity? ठीक है, बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जा रहा है। और बिजनेस में हम करते क्या है?
तुम खुद सोचो बिजनेस में हम क्या करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर कोई गुड्स खरीद के लाते हैं और बेचते हैं। कोई कहेगा सर कोई सर्विसेज सप्लाई करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। जैसे मान लो कोई मार्केट में अपना एक शॉप खोला हुआ है, रेडीमेड का कपड़ा बेच रहा है, खरीद के ला रहा है बेच रहा है, तो गुड्स का सप्लाई दे रहा है ना। और कोई क्या कर रहा है, ऑफिस खोल के बैठा है, वो इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर, तो क्या दे रहा है वो? गुड्स दे रहा है कि सर्विस दे रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और ये जो चीजें मार्केट में एक्सचेंज की जा रही हैं, इससे हो क्या रहा है? लोगों की जरूरतें पूरी हो रही है, सही है। तो जो सवाल आपसे करा गया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। अभी कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, ये डिपेंड करता है कि वो किया क्यों जा रहा है। अगर पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए किया जा रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, लव और अफेक्शन की वजह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वो इकोनॉमिक नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि फ्रेंड लोग 10 लोग, या 10 तो नहीं, मतलब आजकल तो क्रिकेटर्स लोग का तादाद कम हो गया, ग्राउंड में लोग कम ही दिखते हैं, 5-6 लोग भी दिख जाए एक साथ तो बहुत बड़ी बात। खैर नहीं, मान लीजिए कि 11 दोस्त है, वो एक साथ डेली निकलते हैं, 11 नहीं 12 दोस्त हैं और एक साथ निकलते हैं और ग्राउंड में जा रहे क्रिकेट खेलते हैं डेली बेसिस पे फन के। इज देयर एनी अर्निंग इन्वॉल्व? कैसी एक्टिविटी है ये? नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। और वहीं आईपीएल खेलने के लिए कोई प्लेयर सेलेक्ट हो गया, कैसा एक्टिविटी है? दोनों में फर्क क्या था? एक में इनकम जनरेट हो रहा है और एक में इनकम जनरेट, राइट। तो इनकम कमाने के लिए अगर कोई एक्टिविटीज परफॉर्म हुआ है तो वो इकोनॉमिक है, और जो इनकम कमाने के लिए नहीं हो रहा है वो क्या है? बिजनेस। क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, इसलिए क्यों बोला गया इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ गए? आगे चले। बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ, जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए बिजनेस। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस का ही हमारे जिंदगी पर असर है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसका असर होता है हमारे बिजनेस, हमारे ऊपर। जैसे आपको स्कूल जाना पड़ता है, आपको कॉलेज जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एसोसिएशन दिखाना पड़ता है, रिलीजियस बॉडीज के साथ एसोसिएशन दिखाना पड़ता है ना। लेकिन इन सब में बिजनेस का सबसे ज्यादा बड़ा इंफ्लुएंस है हमारे डेली लाइफ में। हम जो चीज खाते हैं या जो पहनते हैं या जो घर में हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, सब कहां से आता है? इट ऑल कम्स थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज, सही है। So it therefore becomes important that we understand the concept of nature and purpose of business. तो चूंकि बिजनेस इतना ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है बिजनेस का नेचर जानना और बिजनेस करने के पीछे का पर्पस जानना। सबसे पहले तो बिजनेस शुरू कहां से होता है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? प्रोडक्शन। और एंड कहां पे हो रहा है? कंजम्पशन। कोई गुड्स प्रोड्यूस होगा, ये स्टार्टिंग एक्टिविटी है बिजनेस का, और वो गुड्स जाके मार्केट में सेल आउट हो गया, कस्टमर ने उसको खरीद लिया, इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज एंड कर दी। कंजम्पशन इज द एंड ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रीच द कंज्यूमर इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब ऐसा तो नहीं है, बोल दिया कि प्रोडक्शन कंजम्पशन, तो ऐसा तो नहीं है क्विक हो जाना। ये कश्मीर में एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा ना, आपके मार्केट में अवेलेबल हुआ, आपने जाके मार्केट से एप्पल परचेज करा, इस्तेमाल करा, अभी कंजम्पशन हुआ। सीजन में प्रोडक्शन हुआ था, उस टाइम से लेके अभी तक बहुत सारा एक्टिविटीज परफॉर्म हुआ। जैसे सीजन में पहले फ्रूट्स को प्लक किया गया होगा, तोड़ा गया होगा, फिर उसको स्टोर करके वेयर हाउस में रखा गया होगा, फिर एज पर द डिमांड उसको ट्रांसपोर्ट करके भेजा गया होगा, और फिर वो ट्रांसपोर्टेशन करके यहाँ पे जिस डीलर के पास आया, उस डीलर से रिटेलर्स तक पहुंचा होगा, और फिर उस रिटेलर से तब आप तक पहुंचा है। कितना सारा एक्टिविटीज परफॉर्म हुआ बीच में, ये सब बिजनेस। ऑल द एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ बिजनेस। द वर्क्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर इंडस्ट्री एंड द रिमेनिंग एक्टिविटीज बिलोंग टू कॉमर्स। अब देखो यहाँ पे आपके टॉपिक का हेडिंग क्या है? बिजनेस, इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, है ना। है तो यहाँ पे बिजनेस तो आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ और कंजम्पशन पे एंड हुआ, सही है ना, ये पूरा बिजनेस है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है ना, वो हम कवर करेंगे किसमें? इंडस्ट्री में। और बाकी सारा एक्टिविटीज कहां कवर करेंगे? कॉमर्स में। यानी अभी दो पार्ट में बांट दिया, बिजनेस को दो पार्ट में बांट दिया। कौन सा दो पार्ट? इंडस्ट्री और कॉमर्स। बात समझ आ रहा है?
इन अ नटसेल वी कॉल देम बिजनेस। यानी जब हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में तो वी हैव टू पार्ट्स, वन इज इंडस्ट्री जो किससे रिलेटेड है, और दूसरा क्या है, कॉमर्स जो बाकी सारी एक्टिविटीज से रिलेट करे, खरीदना, बेचना, सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, सब किस में आ रहा है, कॉमर्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? आ जाइए नेक्स्ट। Rule of business in development of economics. Business has been included, trade and commerce have declared a variety rules of the same time members you have studied in your earning class there our country India has been past and the trading activity has been antiquated to the information and gains of sufficient index have so their trading activities have been measured to the economics in initial time, recent time, which we were carried out of both water and land rules, skills, road and the maritime trade of were required for maintenance in transportation goods for trading purposes. नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से एक पैराग्राफ। System Hmm. activities. The The goods goods से were start trade करो। got integrated and to the audience land this generation surplus income has a result of people were invested in very economic activities such as and generation of animals rates cotton being farmer making their pots and gifts and handed to cottage and mostly its family तभी तक पूरा कर पैराग्राफ एंड तक पढ़ो, ट्रेडिंग तक। एक्टिविटीज तक। हाँ, activities workshop for very important common point of economic life. This money has translated into further investment and led the dominant growth in banking system of finance the trading activities. देखिए जो अगला पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है वो रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल है। पहला सवाल तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का था, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा सवाल है डिफाइन बिजनेस, ठीक है। तो जब आप बिजनेस को डिफाइन करोगे तो बिजनेस का डेफिनेशन तो लिखोगे ही लिखोगे, एंड में जाके ये भी लिखना है कि इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। आगे चलिए, रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल है। अभी देखो बिजनेस में आपको पता है ना कि ये इसमें ट्रेड और कॉमर्स इंक्लूड है, और आज के टाइम में इस ट्रेड और कॉमर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं दैट कि इंडिया का गोल्डन पास रहा है ट्रेडिंग एक्टिविटीज में, व्यापार के मामले में। विदेश से लोग व्यापार करने के लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन के तौर पे इंडिया को चूज करते थे एक टाइम पे। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में भी, यानी अगर पुरानी चीजें जब डिस्कवर की जाती है तो उसमें भी इस बात का सबूत मिलता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है ना वो हमारे एंशिएंट टाइम्स का मेन हिस्सा रहा है, और ये दोनों रूट से किया जाता रहा है, वाटर रूट से भी और लैंड रूट से भी। सिल्क रूट और मैरीटाइम ट्रेड वर क्वाइट प्रोमिनेंट इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड कमोडिटीज फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इन दोनों रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है एंशिएंट टाइम से ही
इन रस्तों का इस्तेमाल किया गया है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नाउ द गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली एंड टू द फॉरेन लैंड्स विच जनरेटेड सरप्लस इनकम। क्या कह रहे, जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है सिर्फ अपने कंट्री के अंदर नहीं हुआ है, कंट्री के बाहर भी गुड्स भेजा गया है, जिसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अगर यहां से एक कंट्री से दूसरा कंट्री गुड्स भेजा जाता है तो उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, द पीपल वर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि एग्रीकल्चर है एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, वीविंग ऑफ कॉटन है, डाइंग ऑफ फैब्रिक्स है, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, स्कल्पटिंग का वर्क हो या कॉटेज इंडस्ट्री हो या मैशनरी का काम हो, बहुत सारे वर्क होते रहे। फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स हैं जिसको हम कारखाना बोलते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी ऐसा नहीं कि एंशिएंट टाइम में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, तो होता था, बट वो फैमिली बेस्ड वर्क होते थे, घर के अंदर ही लोग काम करते थे, और वहां पर भी ज्यादातर जो है ना फिजिकल वर्क ही किया जाता था वर्कर्स के द्वारा, यानी मशीनरीज और इक्विपमेंट्स का उस तरीके से इस्तेमाल एंशिएंट टाइम में नहीं होता। और ये सब जो है ना इकोनॉमिक लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। दिस मनी वॉज चैनलाइज्ड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड लेड टू द डोमिनेंट ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम टू फाइनेंस द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। फिर बैंकिंग का दौर आया, और बैंकिंग के दौर का भी बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ है मालूम है? मालूम है कैसे स्टार्ट हुआ बैंकिंग सिस्टम? इसको एकदम एक सिंपल से एग्जांपल से बताते हैं कि सोसाइटी में एक ऐसे ऑनेस्ट इंडिविजुअल जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा ईमानदार थे, उनके पास लोग जाके अपना कॉस्टली चीज रखते थे, पैसा या जो भी वेल्थ होता था, और वो उन्हें एक नोट लिख कर दे देता था, रिटन नोट। ठीक है, और उस इंडिविजुअल को बहुत सारे लोग यूज करते। आज की तरह नहीं ना है कि मकान उस तरीके का स्ट्रांग हुआ करता था, लुटेरे बहुत होते, तो लोग चाहते थे कि हम किसी सेफ हाउस में अपनी चीजों को, अपने वेल्थ को रखें। तो ऐसे ही एक इंडिविजुअल के पास सब लोग अपना पैसा, अपना वेल्थ जमा करते थे, और वो रिटर्न नोट दे देता। अब रोड चलते लोग एक दूसरे से व्यापार करते थे, तो क्या करते, नोट को एक्सचेंज, रिटर्न नोट को एक्सचेंज कर ली कि जाओ मेरा पैसा वहां पड़ा हुआ है ले लो। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा है क्योंकि फिर वो पूरा डिटेल डिस्कशन है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया कि बैंकिंग सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा है। अब लोगों के पास, हर के पास अपना अपना वेल्थ जमा है, और किसके पास किसका कितना वेल्थ है उस इंडिविजुअल के पास, अगर वो नोट उसने दूसरे को दे दिया तो ऑटोमेटिक है ना, आपको वो पर्सन पैसा कब देगा? व्हाट इज द प्रूफ? दैट चीट इज द प्रूफ। बैंक में आपको क्या होता है, पैसा जमा करते हो, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गया ना, नहीं तो पहले क्या होता था, आपके खाते पे चढ़ता था कि आपका इतना पैसा है ना, आप चेक काट के देते थे, तो आपको वो जितना पैसा आपके अकाउंट में है उसके हिसाब से आपका चेक का पेमेंट होता है, राइट? तो बैंकिंग सिस्टम, ट्रेडिंग एक्टिविटीज का इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम यूज हुआ ना, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो चीजें यूज होती थी ना, उसको कहा किया जा रहा है हुंडीज, चिट्टीज। आज भी सब टर्म यूज होता है। अब ये हुंडीज और चिट्टीज क्या है, हम लोग का अगले क्लास का पार्ट होगा जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रेडिशनल इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। क्या डिस्कशन होने वाला है इस पैराग्राफ में? इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में, यानी वो बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है, इसी एरिया में ओरिजिनेट हुआ, उसके बारे में आप उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। तो अब तक हम लोगों ने जो भी पैराग्राफ पढ़ा है उसमें कौन कौन सा सवाल अराइज हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं, है ना, बिजनेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, क्या है डिस्कशन में। अगले क्लास में हम लोगों का एंड सेक्शन क्या है, हम लोगों का नेक्स्ट सेक्शन किसके ऊपर में बात होने वाला है, उसमें इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, रीडिंग करके आइएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा कोशिश करें कि थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखे हर बार, वाइब्रेशंस कम हो वॉइस में, हार्ट का फ्लक्चुएशंस कम हो। ठीक है, और वॉइस कंट्रोल ज्यादा हो, और एंड तक आपका वॉइस पहुंचे, यहां तक डेवलप करना है अपने आप। टाइम लगेगा, ये थोड़े बोल रहे हैं कल के कल कर लेना, इट विल टेक टाइम, बट ये एसेंशियल है आप लोगों को।